हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। मैं ये वीडियो जो आज बना रही हूँ, आज पहले क्लास 11th के बच्चे की एक रिक्वेस्ट पे है। एक बच्चे ने मेरे चैनल पे मैसेज किया था कि मैम प्लीज़ 11th क्लास की वीडियोस भी बनाइए। तो इस समय मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि जस्ट मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना और अभी मेरा फोकस क्लास 12th पे है क्योंकि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है। वेरी सून आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज फॉर क्लास 11 टू, राइट। देन आई आस्क द स्पेसिफिक टॉपिक in which the child has doubt, right? Then child has told me the relationship between TU and MU, so I am making this video for that child, right? So what is utility? Before starting the relationship between TU and MU, you must know the meaning of TU and meaning of MU. Before starting the meaning of total utility and marginal utility, you must know what is utility. Utility is want satisfying capacity of a commodity is what? Utility. ठीक है, utility is different from usefulness because we can never say the pen is useless. Pen is always useful, but pen has zero utility for a illiterate person who cannot write. So what is utility? The want satisfying capacity, the commodity which has power to satisfy my wants, that has utility. For example, cigarette, wine, liquor, that satisfy the wants of drinker, smoker. So that these commodity has utility for smoker, for drinker, but these are not useful, they are very harmful, right? So utility is want satisfying power of a commodity. It can be total utility, marginal utility. Total utility is what? Sum total of satisfaction. Sum total of satisfaction derived from each unit, first unit, second unit, third unit of a commodity at given level of consumption. जैसे मैंने एक लंच में 3 चपाती खानी है, ठीक है, तो 3 चपाती खाने के बाद मेरे को कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। पहली चपाती खा के मुझे 20 यूटिल मिला, दूसरी चपाती सेकंड से, नॉट 2, सेकंड से 15 मिला, थर्ड से, नॉट 3, थर्ड से कितना मिला? 10 मिला। तो इनको अगर हम सम कर दें तो दैट इज व्हाट? टोटल utility, right? Come to MU. What is marginal utility? This is addition to TU. Addition to TU. Change in TU by consuming one more additional unit of a commodity. This is known as marginal utility. What changes comes in my total satisfaction in my TU, right? By consuming one more additional unit of a commodity. This is what is known as MU, marginal utility. Clear? So if suppose by consuming 5 units of X commodity, suppose my TU is 50 utils, right? And I added one more, that is after consuming 6 units, right? 6 units of X commodity, my satisfaction becomes 60 utils. So what is the addition to TU by consuming one more unit? This is 6th unit, that is equal to 10 utils. So 10 utils is what? MU. How we calculate MU? That is TU n minus TU n minus 1. TUN जिस लेवल पे हम MU कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस लेवल ऑफ कंजप्शन पर हम MU कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या है? TUN। और TUN minus 1 यानी कि -1 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द सेटिस्फैक्शन derived by the additional unit -1, what was the TU? This is what? TUN minus 1. तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ 6 यूनिट पर, तो TUN कितना हो गया हमारा? 60। और TUN minus 1 एक यूनिट घटाने के बाद कितना TU था? यानी कि 5 यूनिट्स पे हमारा TU था 50। तो व्हाट इज द MU? दिस इज 10 utils.
10 utils is MU, right? How we calculate TU? This is sigma MU. Sum of marginal utility is TU, and TUn minus TUn minus 1 is what? MU. But if suppose in your table here the TU is given here not increasing by one more unit, एक एक यूनिट से आपका कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रही है 1 से 3, 3 से 8, 1 to 3 नहीं बढ़ रहा है, यूनिट कंज्यूम्ड कैसे बढ़ रहा है? 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 8, 1 2 3 नहीं बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे -1. सो दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर. यहाँ पे नहीं कर सकते. कहाँ पे ये करेंगे? जहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम्ड कैसे बढ़ती है? 1 2 3 4, वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. लेकिन जहाँ पे यूनिट कंज्यूम इज इंक्रीजिंग बाय मोर देन 1 यूनिट, दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क. ठीक है, तब हम आपका यहाँ पे TU है, सपोज ये 50 है, ये 80 है और ये 150 है. Which formula we will apply in this situation? This is change in TU upon change in units consumed, right? Change in units consumed. तो यहाँ पे अगर इनिशियल तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि चेंज हम नहीं निकाल सकते इनिशियल पे, फर्स्ट लेवल ऑफ कंजप्शन है. यहाँ पे हमारा व्हाट इज द चेंज इन TU? दिस इज 30 यूनिट्स. व्हाट इज द चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम? दिस इज 1 to 3 by 2 units, so it is 15 utils. समझ में आया? तो ये हम इस तरह से क्या निकालते हैं? MU, change in TU upon change in units consumed. Come to the relationship. ठीक है, relationship between TU and MU. It's very easy. इकोनॉमिक्स बच्चों इतना सिंपल है ना, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ो तो आपको लगेगा अरे तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब ये देखिए रिलेशनशिप पे आते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ यूनिट्स कंज्यूम. जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, यूनिट्स कंज्यूम्ड 0 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ TU एंड यहाँ MU, राइट? सो TU विल बी 0. अगर हम कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा क्या हुआ? 0. MU also will be 0, right? यहाँ पे आपका TU सपोज है 10 यूटिल्स. ये किसमें है? यूटिल्स में. इसकी क्या है? मेजरिंग यूनिट क्या है? यूटिल्स. जैसे हम मिल्क को काय में मेजर करते हैं? लीटर में. इसी तरह से यूटिलिटी को मेजर करते हैं काय में? यूटिल्स में. ये 10 हुआ. 2 यूनिट पे, नॉट सेकेंड, 2 यूनिट्स पे TU हमारा कितना है? 25. ठीक है, तो यहाँ पे MU कितना हुआ? 10, राइट? यहाँ पे MU आपका कितना हुआ? 15, राइट? हियर 15 की जगह हम करते हैं यहाँ पर दिस इज लेस देन 8 because MU falls as per law of DMU, right? So it is 8. Now I will add here 5, 23. So what is the change in TU? 23 minus 18, 5. Then here 25. So what is the change? 2. 25 minus 23 TUn minus TUn minus 1 is equal to M. ठीक है, अब यहाँ पे 6 पर क्या है? No change. तो it is 0. 25 minus 25 is equal to 0. यहाँ पे आपका 22. तो कितना हुआ? -3. इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ये सारा इकोनॉमिक्स हमारे चारों तरफ है. ठीक है, आपका आप खाना खाने बैठते हैं घर में, मम्मी आपको खाना सर्व करती है. ठीक है, तो जब आप भूखे होते हैं तो आपका जो टोटल पहली चपाती खाने के बाद टोटल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी डराइव होगी वो ज़्यादा होगी. आपने पहली की 10, सेकंड पे कम हो गया क्योंकि यू बिकेम पार्टली सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग फर्स्ट चपाती. पहली चपाती ने आपकी भूख को पार्टली सेटिस्फाई कर दिया. तो सेकंड की का जो सेकंड यूनिट है चपाती की, उसने आपको कम सेटिस्फेक्शन दिया एज कंपेयर टू फर्स्ट. फर्स्ट ने कितना दिया था? 10 यूटिल्स. सेकंड ने कितना दिया? 8 यूटिल्स. फिर थर्ड लिया आपने, उसने और कम दिया क्योंकि 2 खाने के बाद और पेट भर गया. तो फिर क्या हुआ?
फिर सेटिस्फैक्शन मिला हमें 5 यूनिट्स, फिर नेक्स्ट फोर्थ में कितना दिया 2, ठीक है। उसके बाद आपका पेट पूरा भर चुका है, ठीक है। लेकिन मम्मी तो प्यार से देती है, मम्मी कहेगी अरे बेटा एक और ले लो, ठीक है, एक और ले लो आप बेटा। तो क्या होगा कि आप उस मम्मी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप उससे चपाती लेंगे, लेकिन उससे आपका सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका पेट भर चुका है, ठीक है। आपका टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो चुका है। आपने मम्मी के कहने से, मम्मी की फीलिंग्स को ध्यान में रख के चपाती ली, लेकिन उसने कुछ एडिशन नहीं किया आपके टोटल सेटिस्फैक्शन में। तो ये नथिंग इज चेंज 25 to 25, सो इट इज 0, MU इज 0, राइट। देन अगेन मम्मी फिर प्यार से आ गई कि एक खा लिया तो चलो एक और देती हूँ, मम्मी को तो बहुत प्यार होता है बच्चों से, ठीक है। तो मम्मी ने कहा अरे एक और ले लो, खाना इतना टेस्टी बना है, एक और चल जाएगी, ठीक है। अब तुमने फिर मम्मी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए एक और चपाती ले ली बच्चों, तो फिर क्या होगा, दैट विल गिव द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, योर स्टमक में डिस्टर्ब, राइट। तो उससे क्या हुआ, आपका जो टोटल सेटिस्फैक्शन था वो इन स्पाइट ऑफ राइजिंग बिकॉज ऑफ द इलनेस योर TU विल फॉल। कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, 25 से कितना हो गया 22, क्योंकि उसने जो आपने 6th यूनिट चपाती की ली, उसने आपका स्टमक डिस्टर्ब कर दिया, आपकी हेल्थ को पे एडवर्स इम्पैक्ट डाला, जिससे TU फॉल हुआ। TU फॉल हुआ तो MU से क्या हुआ, जो सेटिस्फैक्शन था वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि 22 माइनस 25 व्हाट इट इज -3। तो आपका MU बाई एडिशनल, व्हाट इज MU, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द एडिशनल यूनिट of a commodity is what, MU, or change in TU by consuming one more additional unit, this is what, MU। तो इसने जो 6th यूनिट थी उससे MU हमारा कितना हुआ, नेगेटिव -3, ठीक है। अब अगर इसको डायग्राम में ड्रॉ करें बच्चों, हमेशा डायग्राम बनाएंगे तो हम एक्स एक्सिस, 2 एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो पहले चेंज होता है, उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज होता है, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको लेते हैं वाई पे। तो पहले हम क्या करें, खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड, पहले हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, यूटिलिटी। तो ये क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल, यूटिलिटी विच इज ए यूटिल्स, ठीक है। वाई पर यूटिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल, एस पर यूनिट्स कंज्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ जाइए, इसको ही देखिए, तो यहाँ पे 0 TU and MU both, right? Here TU start, अगर हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 and 6 में, तो TU कहाँ तक बढ़ रहा है बच्चों, 4 तक, तो ये 4 तक आपका TU क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये 4 तक बढ़ेगा। फिर ये कांस्टेंट हो गया 5 पर, देखो 4 से 5 नो चेंज, तो 4 से 5 नो चेंज TU, एंड आफ्टर 5 इट में फॉल। तो 5 पर क्या है, ये मैक्सिमम यहाँ नहीं है बच्चों, याद रखना, ये दोनों जगह 25-25 है, लेकिन ये पॉइंट मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम मतलब आफ्टर दैट इट मस्ट फॉल, तो इसके बाद तो नहीं फॉल हो रहा है, इसके बाद तो कांस्टेंट है, तो दिस इज नॉट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TU, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TU, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब आ जाइए MU पर, फर्स्ट यूनिट पर TU और MU दोनों बराबर होते हैं, फर्स्ट यूनिट पर इफ इट इज 10, ये दोनों बराबर होंगे। जहां पे MU, देखो जहां पे MU मैक्सिमम है वहां TU क्या है, MU क्या है, 0, जहां पे TU मैक्सिमम है, स्टॉप्स राइजिंग 25 वहां MU बिकम्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे TU मैक्सिमम है 5 यूनिट्स पर,
ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या होगा, फॉल होगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद mu फॉल हुआ तो mu becomes नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। x पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहले हम कंज्यूम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट हुआ, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y एक्सिस यूटिलिटी। अब जब तक mu फॉल ही होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो लेकिन जब तक mu फॉल होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मतलब x एक्सेस के ऊपर रहता है, तो 5th यूनिट से पहले ये क्या है, x के ऊपर है। ठीक है, तो जब तक ये पॉजिटिव रहेगा हमारा tu क्या होगा, बढ़ेगा। tu क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब ये tu मैक्सिमम हो जाएगा, will reach at the maximum point, mu will become 0. ठीक है, and once tu will start falling, mu will become negative. So 3 points of relationship you have to remember. Once mu is positive, falls but remain positive above x-axis, tu increases. When mu is 0, tu reaches at maximum. When mu is negative, tu start falling. इसको हम दूसरे तरह से tu के रेफरेंस में भी कह सकते हैं। जब तक tu बढ़ता है mu पॉजिटिव होता है, फॉल होता है बट पॉजिटिव होता है। जब tu मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो mu 0 होता है, राइट, और जब tu फॉल होने लगता है तो mu नेगेटिव हो जाता है। तो दिस इज द point of relationship between tu and mu. I taught you. I think it will be clear to you. और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि ये आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। कोई भी सफलता, ठीक है, अगर मेहनत से ना मिली हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है, याद रखना। अगर हमें कोई भी चीज़ बिना एफर्ट्स के मिल जाए तो उसको आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे। जब कोई भी सफलता आपको आपकी मेहनत करने के बाद मिले तो उसमें मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो हम मैं सारे बच्चों से एज ए टीचर ये कहना चाहती हूँ कि आप जो पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, मेहनत से नंबर लाएं, किसी भी गलत तरीके से नहीं। बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में इधर आधर देखते रहते हैं, MCQ कोई बता दे, है ना, कहीं से कुछ मिल जाए, कभी नहीं। ये आपका एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, आपकी परीक्षा है, ना कि आपके दोस्त के बेस पे आपकी, ये आपकी परीक्षा है। ठीक है, तो मेहनत सफल हो, लेकिन कैसे, मेहनत करके। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।